वेलकम टू योर एकेडमी मुनीलाल सर। क्लास 10 के सभी स्टूडेंट्स का मैं मुनीलाल सर अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू discuss a very important topic of your book, Beehive, a letter to God. This is the very first chapter of your book. Dear students, यह क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश बुक बीहाइव जो एनसीईआरटी की बुक है, तो उस बुक का ये फर्स्ट चैप्टर है, अ लेटर टू गॉड। और फ्रेंड्स, इसे लिखा है जीएल फुंटिस ने। तो क्या होता है, आपको इस टाइटल को सुन के आश्चर्य भी हो रहा होगा, क्योंकि इसमें अ लेटर टू गॉड जो टाइटल दिया गया है, इससे यह पता चल रहा है कि गॉड के नाम पत्र, यानी खुदा के नाम, ईश्वर के नाम, परमात्मा के नाम पत्र, जो कि आज के संसार में इम्पॉसिबल है। ठीक है, खुदा को कोई पत्र कैसे लिख सकता है भाई? इम्पॉसिबल है, इम्प्रैक्टिकल है। लेकिन जीएल फुंटिस महोदय ने, ठीक है, ये प्रयास किया है, यह दिखाने का प्रयास किया है। जीएल फुंटिस हैज मेड एन successful attempt to show that one can write a letter to God if one has true faith in God. फ्रेंड्स, यदि गॉड के प्रति सच्ची भक्ति हो, सच्ची आस्था हो, तो कहता है गॉड को भी आप पत्र लिख सकते हैं, एंड ऑल्सो यू कैन गेट अ रिप्लाई फ्रॉम गॉड। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह की यह कहानी है। द स्टोरी बिगिंस विथ लेंचो। फ्रेंड्स, स्टोरी जो है लेंचो से स्टार्ट होती है। हु इज लेंचो? लेंचो इज अ वेरी हार्ड वर्किंग फार्मर and he lives an isolated valley. There is no any other house except one, and that one of Lencho's house. फ्रेंड्स, उस इंटायर वैली में एक भी घर नहीं होता है, केवल लेंचो का घर होता है। ठीक है, आइसोलेटेड प्लेस में। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप एक तरह का जो जीएल फुंटिस ने सेटिंग रखी है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। डियर फ्रेंड्स, इस संसार में जो लोग रहते हैं, खुदा उनसे दूर रहते हैं। हमारे इंडियन कल्चर में
इंडियन मैथोलॉजी में ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं कि जब हमें गॉड को पाना होता है, गॉड से मदद लेनी होती है, तो हम सुना करते हैं कि लोग जंगल चले जाते थे, तपस्या करते थे। दे meditated for a long time, or you can say they meditated till he or she found God, or he or she had a vision of God. तब तक तपस्या करते रहते। Such kind of setting is created here by GL Fulkes. इसलिए फ्रेंड्स, आप जब स्टोरी पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि एंटायर वैली में एकमात्र मकान है, और उस मकान में लेंचो lived with his family. His fields are ready to be harvested, but still they need a shower, or you can say a downpour. And one morning, Lencho predicted that he was going to have some rainfall that day. Why? Because he saw the huge mountains of cloud approaching from the northeast. Dear friends, सुबह सुबह वह नॉर्थ ईस्ट में ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स देखता है, एंड लेंचो प्रिडिक्टेड to have some rainfall. Lencho's prediction came to be true, because as he had predicted, big drops of rain began to fall, and Lencho's joy knew no bounds. Lencho was very happy. Why? Because what he needed, he got. He needed a rainfall, a downpour, or at least a shower, and this rainfall will give him a good harvest. That's why Lencho was very happy. He was so happy that he compares the raindrops to the new coins. Lencho says to his wife, these raindrops are like new coins. But Lencho's joy shuttered at once. लेंचो की खुशियाँ जो है बिखर जाती हैं अचानक. Why? Because the rain suddenly changes into hailstorm.
वर्षा जो है अचानक हेल स्टॉर्म में बदल जाती है फ्रेंड्स। हेवी with heavy rainfalls, big pieces of hailstones begin to fall, and it continues for a long time, and this causes the total destruction of Lencho's crops. Lencho's crops were totally destroyed due to hailstones. It was a huge loss for Lencho. Why? His farming was the only source of his livelihood. That's why Lencho feels very, very sadness, or you can say Lencho is very sad. He mourns that night. Lencho जो है उस रात शोक मनाता है. His family would have to go hungry that year. Lencho says to his family, to his children, that this year they would have to go hungry. But no, suddenly Lencho remembers that no one dies hunger. अचानक लेंचो को याद आता है, नहीं भूखा कोई नहीं मरता. Why? As Lencho was instructed that God can see everything, even in the conscience of one's mind, or you can say one's heart. God can see everything. God's eyes can see everything. That's why Lencho turns to God. इसलिए लेंचो गॉड के प्रति मुखातिब होता है. He wants to get some help from God. And that's why, dear friends, dear students, he wrote a letter to God asking for 100 pesos. 100 pesos डिमांड करता हुआ लेंचो एक लेटर लिखता है गॉड. When the letter is read by the postman as well as the postmaster, all of them were surprised. Particularly the postmaster was very, very surprised to see the letter. He surprisingly says, what a fate. आश्चर्य से वह कहता है, कितनी गहरी आस्था है इस इंसान की.
गॉड के प्रति, who wants to correspond with God, जो भगवान के साथ पत्राचार करना चाहता है। And the postmaster wants to have such a faith in God. The postmaster was an amiable fellow. He doesn't want to shatter or to shake Lencho's faith in God. That's why he decides to answer the letter. But it was clear that not only ink, paper and goodwill required to answer that letter. It required something more. And what was it? It was nothing but 100 pieces. लेटर का जवाब देने के लिए केवल गुडविल, इंक और पेपर सफिशिएंट नहीं था, ठीक है, 100 पीसों की जरूरत थी। फॉर दिस द पोस्टमास्टर आस्क्ड his employees, his friends to help him this act of charity. And anyway, the postmaster was able to collect just more than half, a little more than half that Lencho wanted. And the money was sent to Lencho. When Lencho counted the money, he gets angry. Why? Why Lencho gets angry? Why did? Or why does Lencho get angry? The reason behind this was that Lencho got only 70 pesos in place of 100 pesos. And Lencho's anger was not for God. His anger was for the post office employees. Lencho is such a innocent person. Lencho has such a great faith in God that he himself says that God cannot deny him what he wants. Such is his faith in God. इतना विश्वास है गॉड पर कि लेंचो ये कहता है कि भाई मैं जो कुछ मांगू और गॉड इनकार कर दे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ही suspects that the post office employees have taken the rest of money, the rest of the sum. That's why he is angry.
And dear students, then Lencho wrote another letter to God, asking him to send the remaining son. And he also makes a request, or you can say a special request to God, that the rest amount should not be sent through him by mail. Why? As I told you earlier, that he suspects that the post office employees are a bunch of crooks. पोस्ट ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉय हैं उन सब को वह कह देता है बंच ऑफ क्रूक्स. तो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी. स्टोरी यहाँ पर खत्म हो जाए. तो अब डियर स्टूडेंट्स, यदि आप टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको स्टोरी समझ में आएगी और टेक्स्ट भी आपको समझ में आएगा. ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, मैं स्टार्ट करता हूँ. बिफोर यू रीड से, दे से faith can move mountains. They means people. People say that faith can move mountains. It's very important line, friends. यानी विश्वास यदि हो तो वह पर्वतों को भी हिला सकता है. बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन. लेकिन सवाल उठता है कि हम विश्वास किस पर रखें. दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेज. और यही सवाल उठाता है यह स्टोरी, यही प्रश्न उठाती है यह कहानी. और ये तो फ्रेंड्स आपको बता ही दिया मैंने. लेंचो इज ए फार्मर हु राइट्स ए लेटर टू गॉड. पूरी स्टोरी आपको मैंने सुना दी. तो आइए सीधे मैं टेक्स्ट पर चलता हूँ. टेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट होगा फ्रेंड्स. ये देखिए, ये रहा टेक्स्ट आपका. ठीक है, यहाँ से टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है. ये रहा द हाउस, यहाँ से स्टार्ट होगा टेक्स्ट. The house, the only one in the entire valley, set on the crest of a low hill. राइटर कहते हैं कि इंटायर वैली का एकमात्र मकान, एकमात्र हाउस जो कहाँ है, ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल. एक लो हिल मतलब कम ऊंचाई वाला जो माउंटेन होता है फ्रेंड्स. Hill means a sort of mountain which is not as high as a mountain. That's why it is said here low hill. एक लो हिल की चोटी पर, क्रेस्ट मीन्स पीक, चोटी. From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. और फ्रेंड्स कहता है यह जो हाइट है, हाइट यानी ऊंचाई, तो इस ऊंचाई से क्या क्या देखा जा सकता है. रिवर को देखा जा सकता था. द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और राइप कॉर्न पके हुए दानों से
या पके हुए दानों वाला खेत, डॉटेड विथ द फ्लावर्स, जो इस ऐसे फूलों से भरा हुआ था, दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा एक अच्छी फसल की उम्मीद दिलाते थे। ठीक है, ये फूलों से पता चलता था कि इस बार फसल अच्छी होगी। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. अब अर्थ मीन्स यहाँ फील्ड्स। फ्रेंड्स, तो यहाँ फील्ड्स अर्थ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लेंचोस फील्ड, यानी लेंचो की जो भूमि है, लेंचो का जो खेत है, उसे केवल एक वर्षा की जरूरत थी। डाउनपोर होता है फ्रेंड्स हेवी रेनफॉल, ठीक है, और एटलीस्ट ए शावर, या नहीं तो ये लाइट रेनफॉल हुआ फ्रेंड्स, हल्की वर्षा, बौछार भी इसको कहते हैं। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, अब सुबह सुबह लेंचो, वही लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स, जो अपने खेतों को जानता था इंटीमेटली, मतलब बहुत करीब से। ठीक है, इंटीमेट रिलेशन होता है, अंतरंगता उसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, जो यानी लेंचो और फील्ड्स दोनों एक दूसरे को कहें अच्छी तरह से जानता था। ठीक है, तो उसी लेंचो को क्या था? हैड डन नथिंग, उस लेंचो ने कहता है कुछ और नहीं किया, हैड डन नथिंग एल्स, एल्स मीन्स अन्य कोई काम, यानी लेंचो ने कोई और काम नहीं किया, बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, बल्कि वह नॉर्थ ईस्ट का स्काई देखता रहा, उत्तर पूरब का आसमान देखता रहा सुबह सुबह। पैराग्राफ चेंज होता है फ्रेंड्स। अब नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, अब वह अपनी पत्नी को वुमेन कहता है फ्रेंड्स, यहाँ याद रखना। वुमेन हम लोग अपनी इंडियन कल्चर में क्या कहते हैं? पत्नी को कहा जाता है भाग्यवान। ठीक है, तो नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। तो स्टूडेंट्स, ये लेंचो का स्टेटमेंट है कि भाग्यवान, अब हमें सचमुच कुछ न कुछ पानी मिलने जा रहा है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, और जो उनकी पत्नी है वह भोजन बना रही थी, तो भोजन बनाते समय उसने कह दिया, येस गॉड विलिंग, कि गॉड की मर्जी, गॉड करे, भगवान करे, वर्षा हो। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all come for dinner। और यहाँ पर बताया गया फ्रेंड्स कि लेंचो के जो बड़े पुत्र थे वे खेत पर काम करते थे, और जो स्मॉलर वंस थे यानी छोटे बेटे थे जो उनके, वे घर के आसपास तब तक खेलते रहते थे जब तक उसकी माँ यानी वुमेन मतलब लेंचो की वाइफ उन्हें पुकारती थी, क्या? कम फॉर डिनर, कि भाई खाने को आ जा। ये पुकार जब तक नहीं लगाती थी ना, तब तक छोटे पुत्र उनके घर के आसपास खेलते रहते। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, मील मीन्स भोजन, फूड। ठीक है, भोजन के दरमियान क्या हुआ? दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, कि जिस तरह लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, पूर्वानुमान किया था, ठीक है, फॉरकास्ट किया था उसने, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगीं। इन द नॉर्थ ईस्ट
huge mountains of clouds could be seen approaching. और नॉर्थ ईस्ट में कहता है ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, ह्यूज मीन्स वेरी बिग, माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स यानी बादलों के पर्वत, कुड बी सीन अप्रोचिंग, कमिंग नियरर, पास आता हुआ। क्या देखा कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ से बादलों के विशाल पर्वत पास आ रहे हैं। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा बिल्कुल ताजी और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। द मैन मीन्स लेंचो, फ्रेंड्स याद रखना है, द मैन यानी वही मैन, लेंचो, वेंट आउट बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन कोई और कारण से नहीं, देन बल्कि टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। इसलिए गया टू हैव द प्लेजर, आनंद लेने के लिए, किसका, ऑफ फीलिंग द रेन, रेन को फील करने से जो आनंद मिलता है। और फील कहाँ करना है, तो ऑन हिज बॉडी, शरीर पर वर्षा के अनुभव से जो आनंद प्राप्त होगा, उस आनंद को लेने के लिए लेंचो बाहर चला गया। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और लौट कर उसने कहा, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, कहा आसमान से जो ये गिर रहे हैं रेन ड्रॉप्स, तो ये रेन ड्रॉप्स नहीं हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के हैं और छोटी बूंदें 5 सेंट के सिक्के हैं। सेंट मीन्स आप इंडियन करेंसी में पैसे समझ सकते हो डियर स्टूडेंट्स। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, नेक्स्ट पैराग्राफ, विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. Dear friends, dear students, with his satisfied expression, ये satisfied का मीनिंग होता है संतुष्ट, एक्सप्रेशन मतलब भाव, यानी वर्षा हो गई तब संतोष हो गया, यानी उसके अंदर एक संतोष की भावना आ गई कि अब तो फसल हो ही जाएगी, संतुष्ट हो गया लेंचो। ही रिगार्डेड द फील्ड, और फील्ड को यानी अपने खेत को उसने नमन किया, प्रणाम किया। यहाँ पर रिगार्डेड का मतलब कौन सा फील्ड है, राइप कॉर्न, पके हुए दानों से जो भरा हुआ खेत है, और विथ इट्स फ्लावर्स, और जो फूलों से भरा हुआ था। ड्रैप्ड इन, जो अब कवर्ड हो गया था फ्रेंड्स, इन अ कर्टेन ऑफ रेन, कैसे कवर हो गया, वर्षा के पर्दे में। ठीक है, वर्षा हो रही थी तो वर्षा के कारण खेत अभी दिख नहीं रहा था उनको, यानी वर्षा को यहाँ पर एक तरह से कर्टेन ऑफ रेन, रेन को जो है कर्टेन कह दिया, वर्षा के कारण जो है खेत दिखाई नहीं दे रहा था ना, तो पर्दा का काम कर रहा है यहाँ पर बारिश, इसलिए बोला कर्टेन ऑफ रेन। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक तेज हवा बहने लगी। ठीक है, एंड अलोंग विथ द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, और कहता है वर्षा के साथ साथ जो है बड़ी बड़ी जो है बड़े बड़े कहो हेल स्टोन्स, ओले गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और सच में ये जो हेल स्टोन्स हैं यहाँ पर,
इनको कहा गया। ये रिजेंबल यानी इसकी शक्ल मिलती जुलती थी नए सिल्वर क्वाइंस से, यानी चांदी के नए सिक्कों से इसकी शक्ल मेल खाती थी। रिजेंबल, शक्ल में मेल खाना, उसको रिजेंबल कहते हैं। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स, अब लड़कों ने क्या किया? एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, अपना कपड़ा उतार लिया उसने, वस्त्र एक्सपोज कर लिया मतलब वस्त्र उतार लिया और चला गया बाहर टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। फ्रोजन पर्ल्स ये मेटाफर है फ्रेंड्स। हेल स्टोन्स को यहाँ फ्रोजन पर्ल्स कहा गया, जमे हुए मोती, क्योंकि मोती की तरह चमकदार होते हैं हेल स्टोन्स, इसीलिए ऐसा कहा। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन। द मैन मीन्स लेंचो। तो लेंचो ने अब क्या कहा कि अब सचमुच बुरा हो रहा है, बैड हो रहा है अब। आई होप इट पासेस क्विकली, उम्मीद है जल्द ही खत्म हो जाएगा। इट मीन्स हेल स्टोन्स। It did not pass quickly. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. लेकिन जल्दी खत्म नहीं हुआ फ्रेंड्स हेल स्टोन्स। कहता है फॉर एन आवर, घंटे भर जो है यह ओला गिरता रहा मकान पर, गार्डन पर, हिल साइड पर, और कहता है द कॉर्न फील्ड, जो अनाज के खेत थे उस पर, और यूं कहें तो ऑन द होल वैली, संपूर्ण घाटी में। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। अब कहता है खेत इस तरह से सफ़ेद हो गया ना, मानो नमक से ढका हुआ हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं रह गया। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई, डिस्ट्रॉयड हो गई, नष्ट हो गई। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों के सारे फूल झड़ गए। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, और लेंचो का दिल दुख से भर गया। ठीक है, लेंचो का दिल इससे भर गया, सैडनेस से, दुख से। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locusts would have left more than this. Friends, यहाँ पर होगा। तो जब ये हेल स्टोन्स खत्म हो गया डियर स्टूडेंट्स, तब लेंचो ने अपने पुत्रों से कहा कि प्लेग ऑफ लोकस्ट जो होता है, यानी टिड्डियों का भी यदि आक्रमण होता था, तो वह आक्रमण जो है टिड्डियों का, उसके आक्रमण होने पर भी कहता है इससे ज़्यादा फसल बच जाती थी, यानी इस तरह से टोटल लॉस नहीं होता था। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन इस ओले ने तो कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमें कोई फसल नहीं होगी, कोई अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वॉज ए सॉरोफुल वन, और वह रात दुखद रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, लेंचो कह रहा है कि हमारी सारी मेहनत बेकार चली गई। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकें। विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सब इस साल भूखे रह जाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप यहाँ तक स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी, और डिफ़िकल्ट वर्ड्स को मैंने फ्रेंड्स हाईलाइट भी कर दिया था, हिंदी भी बता दी है आपको। आप इसे कॉपी में अवश्य नोट कर लें, और भी कोई समस्या हो
तो आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आप लोगों की भरपूर मदद करूंगा। इसलिए आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याएं लिखें। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलते चलते आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें, और पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जब कभी मैं नया वीडियो अपलोड करूं या लाइव क्लासेस में आऊं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इन्हीं बातों के साथ थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।